Good morning, students. Today we will discuss the next topic, next chapter, current electricity. In the previous topic, we studied electrostatics. What is the basic difference between electrostatics and current electricity? Static means rest. Electro is the charge. Electron is the charge. So when we study the charge at rest, then the properties of charge at rest is studied in the chapter electrostatics. But in the current electricity, current means flow of electrons. Yani in this chapter we will study the flow of charge, and this flow of charge constitute electric current. Therefore, in this chapter we study the movement of properties of the charges when it is moved in a conductor. Okay? तो current electricity में basically the basic concept of current electricity हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. फिर भी what is current, what is करंट या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called electric current. Is called electric current. It means current I is equal to charge Q upon time T. Current is equal to, from this definition, current is equal to charge upon time. So what is the SI unit of current? The SI unit of current is ampere, and 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second, or 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. And coulomb per second is called ampere. So this is the definition of electric current and how we can measure the electric current and the unit of electric current. Now, potential difference. What is the potential difference and which device create potential difference? तो if कोई कंडक्टर आपने लिया तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज होते हैं, वो मूव करता है, ऑटोमेटिकली मूव नहीं करता है. उसको जब हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है. जब हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो सेल के जो 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल्स इज एट हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इज एट लो पोटेंशियल. जब किसी कंडक्टर को के एंड्स को हाई और लो पोटेंशियल में कनेक्ट करते हैं
तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, देन करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो करंट फ्लो कराने के लिए हमें किसी वायर में उसके एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सेल होगा, बैटरी होगा, जनरेटर होगा, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज वंस क्रिएटेड across the ends of capacitor, across the ends of the conductor, current will flow in that conductor. So we have already studied the definition of potential difference and its unit in the chapter electrostatics. So now how current is flow when the potential difference is applied, it is given by Ohm's. That's why Ohm's law is for the current and potential difference across the conductor. So it states that the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor, provided the temperature and other physical condition remain same. ये है ओम्स लॉ। 10th क्लास में भी पढ़ा था ओम्स लॉ कि करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor, provided the temperature and other physical conditions remain same. ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग क्रिएट करेंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर तो करंट फ्लो होगा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट? तो ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल करंट ज्यादा होगा अगर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कम है तो करंट भी कम होगा। इसका मतलब अगर मैथमेटिकली देखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. दिस इज द ओम्स लॉ. V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट. देन V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट Ri और V इज इक्वल टू IR. This is the mathematical form of Ohm's law when temperature and other physical condition remains the same. Here R is the constant for a conductor. ठीक है, R is constant for a conductor called रेसिस्टेंस. इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस. जैसा इसका मीनिंग है, वर्ड है, उसके हिसाब से ये रेसिस्ट करेगा. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, तो रेसिस्टेंस फ्रॉम दिस इक्वेशन R इज इक्वल टू V अपॉन I. ठीक है, और यूनिट
SI unit is ohm, रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम है, ये सिंबल है. 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी 1 ओम इज 1 वोल्ट पर एम्पियर. तो वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम. तो हमने देखा 10th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़े हैं कि R इज इक्वल टू V अपॉन I एंड R इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर. अगर कंडक्टर चेंज होता है तो R भी चेंज होगा. ठीक है, ये है ओम्स लॉ. अगर हम ग्राफिकली देखें वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, हाउ वी कैन वेरीफाई द ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली. तो हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं. एक रेसिस्टेंस, एमीटर to measure the current, here is a key, battery and a rheostat. To measure the potential difference, we add potential voltmeter across the resistance R. This is the circuit diagram for the verification of Ohm's law. This is a resistance, ammeter which measures the current, voltmeter which measures the potential difference, battery which provides the potential difference across the resistance, and rheostat, it is the variable resistance through which we can vary the potential difference across the resistance, and we measure the corresponding change in the current. ठीक है, इसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए rheostat से एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया और उस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करस्पॉन्डिंग करंट मेजर किया. फिर विद द हेल्प ऑफ rheostat we change the potential difference, and for that change again corresponding current is measured. ठीक है, in this way we have so many observations we can take, and we plot a graph, potential difference versus current, and we get straight line. It shows that V is proportional to I, which verify the Ohm's law. समझ में आया कि ओम्स लॉ वेरिफिकेशन में सर्किट डायग्राम इस तरह ड्रॉ करते हैं, रियोस्टेट के हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं और ईच पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करस्पॉन्डिंग करंट मेजर करते हैं और वी और उस करंट आई के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी आई ग्राफ. और दिस वी आई ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स V is proportional to I and Ohm's law is verified. From this graph, if we have to calculate what is the value of resistance, then we draw a perpendicular from any point of the line on x-axis. ये ड्रॉ किया. दिस इज O, A and B. The resistance from this graph we can calculate R is equal to V upon I
and this is equal to V is OA and I is AB. I is AB. So from the graph, OA upon AB gives the value of resistance. This perpendicular can be drawn from any point on the line. Now, if we draw a graph, if we take I along x-axis and V along y-axis, and we have a graph, so it is also a straight line. From this graph, again, if we have to calculate resistance, we draw a perpendicular on the x-axis from any point of the line, and this V is equal to, R is equal to V upon I, and we have potential difference V from AB. AB is equal to V and OA is equal to I. So if we have graph in which I is given on x-axis and V is given on y-axis, then from this graph we can also calculate the resistance V upon I, and V is from the line AB, and we measure the I from line OA, and AB upon OA is the resistance. This is also the slope of the line. Okay? One question is here, if we have a graph V along x-axis and I along y-axis, and 1, 2, this is A and B. There are two lines for resistance A and resistance B on a single graph. So which one resistance has the greater value of resistance? है ना, ये अलग कंडक्टर का के लिए है ग्राफ, ये बी कंडक्टर के लिए है ग्राफ. तो इन दोनों कंडक्टर में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि कभी भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगा, कभी भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा. तो उसका एक ही टेक्निक है, जो जैसे हम लोग करेंगे कि वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन on the x-axis, which touches both the line A and B. ठीक है? We have 2 points here. For this point, potential difference, and for this point, potential difference is same. For both these 2 points, potential difference is same, but current is different. For here I1 and I2. For graph A, RA, resistance of A is equal to V upon I. ठीक है? तो V and I is I1.
Okay, and for graph B, resistance of B is equal to, again it is also V upon I, and V is same for both the points, and here I is I2. तो हम देख रहे हैं कि आर ए, रेजिस्टेंस ऑफ ए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. रेजिस्टेंस इन बी ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इफ आर I1 is less than I2, I1 is less than I2, therefore RA, resistance of A is greater than RB. ये ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सेम अगर डायग्राम चेंज करता है, along the x एक्सिस I ले लिया, V दे दिया है आपको, ठीक है, और ये दो लाइन है, दो अलग अलग कंडक्टर के लिए. ठीक, अब इस ग्राफ से विच कंडक्टर हैज ग्रेटर रेसिस्टेंस, ये फाइंड करना है. तो अगेन यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन which intersect A and B as 2 points. Okay, this is the potential difference V1, this is the potential difference V2, but for these 2 points current is same. So again RA, resistance of A is equal to V upon I. Okay, तो V is V1 and current is same, मतलब ये I है, and RB is also V upon I, and here V is V2, है ना, पोटेंशियल V2 के बराबर है, करंट I है. तो ये दो फॉर्मूला हुआ RA एंड RB के लिए हमने निकाल लिया. अब कंक्लूजन निकालना है कि V1 एंड V2 वेरी हो रहा है, करंट सेम है, ठीक है, तो विच वन इज ग्रेटर, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, देयरफॉर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उसी का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा. हियर V2 इज ग्रेटर देन V1, देख रहे हैं, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो RB इज ग्रेटर देन RA. समझ में आया? RB इज ग्रेटर देन RA. तो ग्राफ में V किस एक्सिस पर है, I किस एक्सिस पर है. अगर किसी भी एक्सिस पर हो, प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे कि R इज V अपॉन I, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां भी अगर ऐसा ग्राफ है तो यहां भी इन दोनों पॉइंट्स के लिए रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, RA एंड RB, और यहां I वेरी कर रहा है, V कांस्टेंट है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, तो जिसका करंट कम होगा रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा. इस केस में भी वही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हो रहा है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. इट मीन जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. करंट तो दोनों के लिए, दोनों पॉइंट के लिए सेम है. तो इस तरह से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ग्राफ कैसा भी दिया रहे, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका कम है. ठीक है. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. फैक्टर्स affecting the resistance of conductor. रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? पहला है, फर्स्ट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
to the length of conductor. Length of conductor means R is proportional to L, directly proportional to L. मान लीजिए एक ही वायर के दो पीसेस हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। एक ही वायर के कंडक्टर के दो टुकड़े हैं, एक छोटा और एक बड़ा है, तो छोटे वायर का रेसिस्टेंस कम होगा, बड़ी वायर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक। सेकेंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the area of cross section, area of cross section of wire। इसका मतलब है R is proportional to 1 by A। क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स थिकनेस ऑफ द वायर। टू इक्वल लेंथ का वायर है, ठीक है, एक थिक है दूसरा थिन है, समझ में आ रहा है? दोनों इक्वल लेंथ का वायर है, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर का मतलब दिस एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ज्यादा होगा तो ये मोटा होगा, अगर एरिया कम होगा तो थिन होगा। तो अगर मोटा वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया पतला वायर है, कम है, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है। थर्ड फैक्टर है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कंडक्टर के लिए, है ना। टेम्परेचर इसीलिए ओम्स लॉ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर बताया गया है। ओम्स लॉ ने का कंडीशन है कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स द सेम, then only R remains constant. If temperature changes, then R also changes, and it depends upon temperature of the conductor. So from first two equation, if we combine these two relation, so R is proportional to L upon A, and R is equal to some constant rho L upon A, where rho is constant called resistivity or specific resistance। समझ में आया? रो कांस्टेंट है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ material of the conductor। ये किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। ओम्स लॉ में कहा कि आर इज अ कांस्टेंट, बट इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर। ओके, इन दिस केस resistivity is also constant, and this constant depends upon the nature of the conductor। लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी ओनली नेचर ऑफ द मटेरियल। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर? उसको सिंपली अगर जाने तो अगर कॉपर वायर है, जितने भी कॉपर के वायर हैं सबका नेचर ऑफ द मटेरियल सेम है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है उसमें सब में सेम होती है,
क्योंकि सभी कॉपर के हैं। जितने एल्युमिनियम के वायर हैं, छोटे हों, बड़े हों, लंबे हों, मोटे हों, सभी के लिए रो सेम रहेगा क्योंकि वो एल्युमिनियम है। लेकिन अगर कॉपर का एक वायर है और एल्युमिनियम का एक वायर है तो दोनों का रेसिस्टिविटी रो अलग होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट मटेरियल्स है। ठीक है, मान लीजिए किसी वायर को, एल्युमिनियम वायर है, हम इसको खींच के लंबा कर दिया, लेंथ इंक्रीज हो गया, तो क्या रेसिस्टिविटी में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि इसको अगर खींचा हमने, एल्युमिनियम वायर को अगर स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने के बाद भी वो एल्युमिनियम ही रहा, मटेरियल का नेचर चेंज नहीं हुआ, इसीलिए रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, रेजिस्टेंस में चेंज होगा। तो पहले हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लें एंड उसका यूनिट देखें। फ्रॉम दिस रिलेशन रो इज इक्वल टू R into A by L। तो यूनिट, SI यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू R के लिए ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और लेंथ के लिए मीटर, एंड दिस कैंसिल, दिस ओम मीटर। ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब हाउ कैन वी डिफाइन द रेसिस्टिविटी? ठीक, तो इफ A is equal to 1 unit square unit and L is equal to 1 unit, then rho is equal to R। अगर इस फॉर्मूले में हम A को 1 रखें और L को भी 1 रखें तो रो की वैल्यू R आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हम रो इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ। तो हाउ कैन यू डिफाइन द रेसिस्टिविटी? इट इज द रेसिस्टेंस of conductor having unit area of cross section and it is the resistance of a conductor having unit area of cross section and unit length। तो ये ऐसे हम लोग रेसिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। ओके, एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द फॉर्मूला रेसिस्टिविटी। अ सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड, a cylindrical wire is stretched, a cylindrical wire is stretched to increase its length, by 10%. Okay, calculate the percentage increase in resistance. Calculate the percentage increase in resistance। ठीक है, 10% लेंथ को बढ़ाया। अगर हम लोग लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा, ये अंडरस्टूड है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, अगर किसी वायर के लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया थिन होगा, वो कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A,
ये फॉर्मूला है। हमने जब इंक्रीज नहीं किया है तो रेजिस्टेंस R, लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस will change and R dash is equal to rho L dash upon A dash. Which factor is changed in this resistance? Changes due to change in length and cross section area, but resistivity remains the constant. क्योंकि हमने बताया कि इंक्रीज अगर करेंगे तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल वही है। ये दो इक्वेशन है। अब इसमें हम L डैश की वैल्यू निकालें। व्हाट इज L डैश? इट इज द लेंथ ऑफ इंक्रीज्ड लेंथ ऑफ द वायर। तो कितना परसेंट इंक्रीज किया? 10%। तो L जो पुराना लेंथ है प्लस 10% ऑफ L, ठीक है। इट मीन्स L प्लस 10/100 L और L प्लस L/10, okay, L plus L/10, or you can say L plus 0.1 L, यानी 1.1 L. This is the increased length of the wire. But what will be the change in cross section area? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम तो ऑलवेज रिमेन सेम है। वॉल्यूम रिमेन सेम, तो वॉल्यूम A dash L dash is the volume of increased wire and original wire, volume of original wire is A into L. These two will be the same क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। ये जब हमने इंक्रीज किया तब वॉल्यूम, ये जब ओरिजिनल लेंथ का वॉल्यूम। तो इससे हम लोग निकालें A dash upon A is equal to L upon L dash, ठीक है। फ्रॉम दिस रिलेशन एंड द वैल्यू ऑफ L dash is equal to 1.1 L. L dash is 1.1 L. This is equal to L upon 1.1 L, यानी A dash upon A is equal to 1 upon 1.1, ठीक है। अब हम डिवाइड करें R डैश अपॉन R इज इक्वल टू L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश, ओके। द वैल्यू ऑफ L डैश इज 1.1 L अपॉन L इंटू A डैश अपॉन A इज 1 अपॉन 1.1. So this will be 1.1 upon 1 and this is equal to 1.1 whole square, 1.21. This is the value of R dash upon R. Okay, now percentage increase in R. Percentage increase in R will be percentage increase in resistance is equal to change in resistance minus original resistance upon original resistance into 100, or you can say R dash upon R minus 1 into 100, and R dash upon R is equal to 1.21 minus 1 into 100. This is equal to 0.21 into 100, or you can say 21%. This is the increase in the resistance of the conductor. ठीक है। इस तरह से आप इस चैप्टर जो आपने टॉपिक्स पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो हैं, एनसीईआरटी बुक है ना, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देख करके करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे और आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है।